Good morning to everyone. Yes, we are starting with, we will go How with, are you, ma'am? ma'am, but I am fine. We will go with the beginning of the chapter. Okay. With the beginning of the chapter, let everybody join. Let them join because they are joining from Google Classroom. It takes some time. Let them join and then we will start. Apurti wants to say something. Yes, Apurti. Yes, Ma'am, when you will Apurti. send the question answers of father of plastic surgery? Give me 2 3 days. I am repeating it again. I am busy with something. I will send you definitely. You will be able Okay, to write ma'am. it up. Okay, beta. Okay, Okay. ma'am. Okay. Yes, Divjot, what's your question? You want to say something? Divjot, you can say. You want to say something? Divjot, I am trying to unmute you from my side, but you're not getting unmuted. Yes, Divjot, what's your question? मैम मुझे साइंस क्लास में चांस नहीं मिला था पूछने का मैम मैं अभी पूछ लूं क्वेश्चन पूछ लो. मैम मुझे था मैम जब आपने मसल्स का मैम कराया था मैम वहाँ पे 600 मसल्स मैम सबकी होती हैं Yes, there are ओके थैंक यू 600 मैम muscles present in your body. Okay. थैंक यू मैम Okay. Now, without wasting our time, let's move to our next class. The students who have raised their hands, I will answer their questions afterwards. Kindly lower your hands just now. When I will give you chance for asking question, you can then only raise your hands. Okay? Kindly lower your hands. Okay, now, without wasting our time, just for a 1 minute, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Relax yourself. Okay. A very good morning to everyone. Now we are beginning our new term of English. Okay, term 2, the father of plastic surgery. We have already discussed half of this chapter, but I am going to repeat it again because there is a gap in between because of your papers. So let's start the lesson. But before starting the lesson, as usual, let's first discuss the difficult words. Okay. Okay, same to you. Okay, let's first discuss the difficult words. The father of plastic surgery. As the name indicates, today we are going to know about who was the father of plastic surgery and how does a plastic surgery that is very famous these days to models and heroines, actresses, and actor even. They do the plastic surgery in order to look more smarter. So, who is the real creator of plastic surgery? Today, we are going to know about it. And before discussing the chapter with you, let's move on to the difficult words. Number one is surgeons. As you know, surgeon आपको सबको पता होगा डॉक्टर who perform operations उसे surgeon बोला जाता है वो डॉक्टर जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं they are called surgeons. Cataracts means कि एक आइस का जो हमारा लेंस होता है उस लेंस पे एक नेट आ जाती है और धीरे धीरे हम लोग ब्लाइंड होने लगते हैं तो उसे कैटरेक्ट्स बोल जाता है क्लाउडिंग ऑफ लेंस इन द आई दैट मीन्स कि हमारी आईज के ऊपर जैसे एक white is written as clouding of lens in the eye as you see the blue sky and suddenly the cloud appears
in the sky and the blue portion it gets blurred. Okay, in the same way there is this is a sort of problem that happens to our lens कि हमारे लेंस पे एक हल्की सी एक नेट सी आ जाती है धीरे धीरे और हम लोगों को दिखाई कम देने पड़ता है, तो उसके और उसे बोला जाता है कैटरैक्ट्स. ओके, प्लास्टिक सर्जरी एंड ऑपरेशन बाय विच some faces or body that has been damaged or burned can be repaired. प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसा ऑपरेशन है जैसे हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज आर देयर. तो तो उसके बाद जैसे ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो हार्ट का ऑपरेशन होता है. ओके, तो ऐसे ही ब्रेन का न्यूरो सर्जन ऑपरेशन करते हैं. ऐसे ही प्लास्टिक सर्जरी वो सर्जरी है, वो ऑपरेशन है जहाँ पे फेस का by which some face or body जो भी कोई पोर्शन है जो डैमेज हुआ होता है और जो बर्न हुआ होता है उसे ठीक करने के लिए वो सर्जरी की जाती है. और वो कैसे की जाती है कि हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे थाई का जो स्किन होता है वो हमारी डैमेज एरिया वहाँ से निकाल के हमारी डैमेज एरिया पे फिक्स किया जाता है इन सच ए वे that it doesn't seem odd. वो odd नहीं लगता, वो part of our face ही लगेगा. Okay, but nowadays it has become the fashion. लोग तो बहुत खुश होके और अपनी ही willingness से without any damage without any burn plastic surgeries को opt करते हैं. Next is molding. Molding means shaping. किसी चीज को shape देना. Okay, it is called molding. Linen. Linen is a क्लॉथ कॉटन कोर्स. लिनन क्या होता है, जैसे आपको इतने बच्चे हो अभी आपको पता नहीं होगा, कॉटन में जब थोड़ी सिंथेटिक मिक्स होता है तो उस क्लॉथ को लिनन बोला जाता है. ओके, एक्सट्रैक्ट हुआ किसी चीज को रिमूव करना. ओके, एंड नेक्स्ट इज डिमोनस्ट्रेट. डिमोनस्ट्रेट आपको पता है, जैसे आपने साइंस का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको सिखाया और आपने वो फिर दोबारा से करके मेरे सामने डिमोनस्ट्रेट किया. शो हाउ समथिंग वाज डन. कैसे मैंने करवाया था आपने वैसे ही उसे रिपीटेड वे में डिमोनस्ट्रेट कैसे हुई है. ओके, sacrifices made for religious purposes. जैसे मुस्लिम लोग जो हैं वो ईद पे कुर्बानी देते हैं या कभी कभी हिंदू भी कुछ वो सेक्रीफाइस करते हैं कुछ एनिमल्स का भेंट चढ़ाने के लिए. ओल्डन एजेस में ज्यादा होता था, अब कम हो गया है, तो उसे बोला जाता है सेक्रीफाइसेस. ऑफरिंग मेड बाय रिलीजियस पर्पसेस. वो चीजें जो हम रिलीजियस पर्पस के लिए करते हैं उसे सेक्रीफाइस बोला जाता है. ओके, सेक्रीफाइसेस इन दिस चैप्टर इसका ये मीनिंग है. सेक्रीफाइसेस तो सोल्जर्स अपने देश के लिए भी करते हैं. ओके, splinters a small thin sharp piece of wood or similar material. बिल्कुल नीडल जैसी, आप ऐसे समझ लो, नीडल जैसी थिन शार्प पीस ऑफ वुड ऑफ सिमिलर मटेरियल. नीडल जैसी पर पीस ऑफ वुड भी हो सकती है या किसी और मटेरियल की भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल नीडल. ओके, दे उसका नाम इस बुक में स्प्लिंटर्स रखा गया है. ओके, amputing means removal of an infected or diseased limb by a doctor. तो जो भी पोर्शन हमारा इन्फेक्टेड हो गया होता है, ये डिजीज हो गई होती है उस पोर्शन को, उसे काट दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर फिंगर में या गॉड ना करे किसी के फुट में एक ऐसी इंजरी है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम रिलेटिंग इट विद द साइंस नाउअडेज. The patients who are having high diabetes, their wounds never get repaired, or they will never get healed. Okay, ना रिपेयर कर सकते हैं डॉक्टर, ना उसकी हीलिंग होती है. तो जिनको हाई लेवल ऑफ डायबिटीज होती है तो नेचुरली क्या होता है, at the end if doctor is not able to do anything, if the medicines are not affecting in a positive way to the infected area, तो उस पोर्शन को कट कर दिया जाता है बॉडी से, ताकि बाकी का जो पोर्शन है वो इन्फेक्टेड ना हो उस वोंड से. क्योंकि जब वो हील नहीं होगा तो नेचुरली जब हम अपना कोई भी
जिसे आप जख्म बोलते हो, अगर जख्म हील नहीं होगा तो वो एक डिजीज बन जाता है, क्योंकि बैक्टीरियाज वगैरह उसमें आ जाते हैं और वो पूरी बॉडी को इफेक्ट करने लगते हैं। तो उससे उसको बचाने के लिए हम उस पार्ट को ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ एन इन्फेक्टेड और infected or diseased limb by a doctor, उसके, ठीक है। और नेक्स्ट इज नेट्स। नेट्स एक स्मॉल, जी इज साइलेंट है, इसको नेट्स बोला जाता है। स्मॉल फाइलिंग इंसेक्ट्स। एम्प्यूटिंग, एम्प्यूटिंग में भी ए साइलेंट है, ओके। एम से पढ़ोगे तो अच्छे से प्रोनाउंस हो जाएगा। और जी यहाँ पे नेट्स में जी इज साइलेंट एंड एम्प्यूटिंग ए इज साइलेंट, ओके। स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट्स, छोटे छोटे फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो है उसे नेट्स बोला जाता है। और ये फ्लाइंग इंसेक्ट्स ऑटोमेटिकली जब एक वॉन्ड पे बैठते हैं और उस वॉन्ड के ऊपर बैक्टीरिया अपना बैक्टीरिया छोड़ जाते हैं, और जिससे वो वॉन्ड बहुत डेंजरस बन जाता है फॉर अ पर्सन, ओके। These are all the difficult words. Now let's start the lesson. The father of plastic surgery. Okay, now let's start. 400 BC, that means before Christ से पहले सर्जन्स जो थे इंडिया के, इंडियन सर्जन्स वेयर फेमस, वो बहुत फेमस हो चुके थे किसके लिए? फॉर परफॉर्मिंग ऑल काइंड ऑफ ऑपरेशंस। और उसमें से एक था कि वो जो कैटरेक्ट्स थे वो भी रिमूव कर सकते थे और इंटेस्टाइन का ऑपरेशन भी कर सकते थे। ये 400 BC की बात है, दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट से पहले इंडियन सर्जन्स वेयर वेरी मच वेल equipped how to perform operations. They usually used to perform the operations of cataracts and intestines, and they were also expert in plastic surgery. वो plastic surgery में भी बहुत expert थे and could actually give new nose by removing some skin from the cheeks and joining it to the nose. And at that time, they were well equipped with the instruments of the operation, and they can perform operations like removing of cataracts, like operations of intestine, and they can even do the plastic surgery. Kaise? Plastic surgery, most of the time during the war, the soldiers were the soldiers lost their noses, and the doctors perform plastic surgery, and they take some sorry, some skin from the cheeks, and they join it on the nose. And at that time, before 400 BC से पहले ही plastic surgery दुनिया में आ चुकी थी, ओके। ओके, अब हम कैसे इस चीज को जानते हैं? क्योंकि एक बुक है सुश्रुता संपदा, ओके। सुश्रुता संपदा इज वन बुक। इट इज अ बुक इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया की बुक है जो लिखी गई है संस्कृत में, और उसे लिखने वाले हैं रिमार्केबल मैन सुश्रुता, ओके। इसलिए इसका नाम है सुश्रुता संपदा, ओके। We come to know that all these things were used by the doctors, by the surgeons in 400 BC with the help of a book that is present in India, and it is written by the Indian doctor, or we can say his name was Shushudra, and the name of the book was Shushudra Sampeda. It was written in Sanskrit, but later on बाकी countries ने इसे अरेबियन, पर्शियन और लैटिन में ट्रांसलेट किया था टू हेल्प कंट्रीज ऑल ओवर यूरोप। यूरोप की सारी कंट्रीज को हेल्प करने के लिए, और वेस्ट एशिया की कंट्रीज को हेल्प करने के लिए कि वो एक स्किलफुल डॉक्टर्स को तैयार कर सके। दैट मीन्स कि जो Shashudra Sampeda है a book that is related to several operations that give us several knowledge about the medicines, about the instruments that are used during the operations, are written by the Indian doctor. उस टाइम उनको priest बोला जाता था या वेद बोला जाता था, and that his name was Shudra and the book name was Shudra Sampeda, okay. Okay, the Shudra and the doctors of his time thought that the book learning, उस टाइम पे जब शुद्रा ने बुक लिखी, बुक लिखने के बाद भी उसे ऐसा लगने लगा, क्योंकि he was a working doctor, he was working with several doctors, and he was training the youngsters. At that time, he feels, and the other doctors to feel, that the learning from the book is too little. They need to learn
by actually performing operation, और सारे बहुत सारे operations करने के लिए उन्हें actually operations perform करने पड़ेंगे peoples पे, जो जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है उनके ऊपर ऑपरेशन ऑपरेट करना पड़ेगा उनको. But most of the people were not able to help Shushudra and the other doctors because they were not willing to operate themselves. They were scared. तो बहुत सारे जो people हैं उन्होंने उन्होंने उनको बिल्कुल कॉपरेट नहीं किया और उन्होंने उनको माना नहीं ऑपरेट करने के लिए. तो वो बड़े बड़े परेशान हो गए कि what to do now. Okay, क्योंकि उनको मनाना it was really very tough. So the young doctors thought of the other way. तो इन सब डॉक्टर्स ने मिलके सब डॉक्टर्स ने मिलके कुछ और करने की सोची. क्या करने की सोची कि they thought that let the people don't allow us to operate on themselves, but we can practice several operations on different types of materials that are present around us. अब वो क्या था? We could learn the art of cutting through flesh. और कटिंग कैसे सीख सकते थे फ्लैश की? बाय शेपिंग द वैक्स ऑन वुडन बोर्ड. दैट मीन्स कि वुडन बोर्ड पे वैक्स को मेल्ट करके उसको शेप देना. तो दे थॉट दैट वो प्रैक्टिस करके हम कटिंग का आर्ट सीख सकते हैं. अगर किसी को कट लग जाता है तो वो प्लास्टिक सर्जरी के लिए अगर स्किन चाहिए होगा तो उसको कटिंग करके उस फ्लैश को कैसे उस पर लगाया जाए हम वो वैसे सीख सकते हैं कि वैक्स को वुडन वुडन बोर्ड पे मेल्ट करके उसको एक शेप देंगे. और उसके साथ साथ हम कुकम्बर, गॉड, वाटरमेलन, अदर सॉफ्ट फ्रूट्स भी हम यूज कर सकते हैं कटिंग कटिंग का आर्ट या कटिंग ऑपरेशन के थ्रू कटिंग सीखने के लिए. तो ये सी दैट मीन्स यू कैन लर्न फ्रॉम हियर हाउ मच हार्ड वर्कर्स दे आर, and it gives us 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 a moral value, that is where there is a will there is a way. जहाँ चाह वहाँ राह. ओके, देखो अगर उन्होंने उनको पीपल ने कॉपरेट नहीं किया बट उनका माइंड कितना शार्प था कि उन्होंने कैसे कैसे ये ऑपरेशन सीखे लेटर ऑन, क्योंकि उनको लगता था कि लेटर ऑन सब लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और अगर किसी की अगर कोई भी इमरजेंसी होगी तो हम ऐसे नहीं बैठ सकते हैं. कोई इमरजेंसी होगी तो हमें हर चीज का ऑपरेशन आना चाहिए ताकि उस किसी भी पेशेंट की जान बचा सकें. दिस इज हाउ डेडिकेटली दे वर्क एंड हाउ हार्ड वर्किंग they were. Okay, तो उन्होंने क्या किया, ये सब चीजों के साथ वाटरमेलन, बिटर गॉड, कुकम्बर, वैक्स ऑन अ वुडन बोर्ड के साथ ये करके एक्सपेरिमेंट्स करके कटिंग थ्रू फ्लैश सीखी कि हम फ्लैश को कैसे कट कर सकते हैं. Their knives cut skillfully through the wax shape and fruit that had been covered with a wax. तो उनकी जो नाइफ्स थी वो बहुत शार्प थी और स्किलफुली उन्होंने वो ऑपरेट करना सीख लिया इन छोटे छोटे चीजों से. उस शुद्रा ने उन्हें बहुत सारा गाइड भी किया. शुद्रा ने कहा कि आप बैंडेज लगाना, गुड बैंडेज करना सीख सकते हो. एक डॉल वर्किंग ऑन द बॉडी ऑफ लाइफ साइड डॉल्स तो स्टफ विथ लिनन. दैट मीन्स कि छोटी छोटी डॉल्स पे आप बैंडेड को यूज करो और आप सीख सकते हो कि अगर किसी को लग जाए तो बैंडेज कैसे की जा सकती है. और स्टिचिंग, दैट मीन्स किसी फॉर एग्जाम्पल आज तो वैक्स आती है बट एट दैट टाइम देयर वाज नो वैक्स. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की सर में चोट लग जाती है और स्टिच की जरूरत पड़ती है तो हाउ यू कैन लर्न स्टिचिंग. यू कैन लर्न स्टिचिंग by giving stitch on leather or clothes. तो जैसे हम क्लोथ्स को सीते हैं ना, कभी कुछ चीज कट जाती है तो मम्मा सीते हैं, तो वैसे ही स्टिचिंग लर्न हुई है. और देखो आज भी वैसे ही स्टिचिंग की जाती है. जैसे हम क्लोथ्स को सीते हैं वैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद स्किन को सीते हैं. ओके, तो ये सब हमारी पूर्वजों की देन है जो हम आगे कैरी कर रहे हैं. ओके, इट वी आर ब्लेस्ड by our ancestors and we are carrying on this profession in a fruitful manner because we have learned several things from that. Okay, तो ये सब चीजें उन्होंने सीखी. वैक्सिंग, स्किन कटिंग कैसे करते हैं, वैक्स को कैसे मोल्ड किया जाता है, फ्रूट्स को कैसे मोल्ड करके डिफरेंट शेप्स दी जाती है, ये उन्होंने वहां से सीखा. एंड बैंडेज कैसे किया जाता है, they have learned from bandaging at dolls and they have learned the stitching by giving stitch on the leather and the clothes. Shushudra showed them a
क्लेवर वे ऑफ लर्निंग हाउ टू एक्सट्रैक्ट टीथ। कैसे अब नाउ डेंटिस्ट जो है स्टार्टिंग में कैसे सीखते थे कि टीथ कैसे निकालना है, क्योंकि लोग उन्हें अपनी टीथ निकालने नहीं देते थे, वो डरते थे कि डॉक्टर्स पता नहीं हमारे साथ क्या कर देंगे, बिकॉज बहुत सारा अंधविश्वास था तब। जादू मंत्र, काला जादू, ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग्स बहुत चलती थी, तो वो लोग डॉक्टर्स पे कम विश्वास करते थे। तो दैट टू दे हैव लर्न बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन द फ्रूट्स। The student doctor practiced first by drawing out seeds from the thick jackfruit, okay, jackfruit pulp, and later by pulling out teeth from the jaws of the dead animals. That means पहले उन्होंने जैकफ्रूट का जो सीड होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उन्होंने वो जैकफ्रूट का सीड निकालना सीखा, और by this they were able to learn how to extract teeth, कैसे हम टीथ को, खराब टीथ को बाहर निकाल सकते हैं। और लेटर ऑन उन्होंने क्या किया कि डेड एनिमल्स पे, जो डेड एनिमल्स थे उनकी उनके टीथ को, उनकी जाज पे वर्क करके टीथ को एक्सट्रैक्ट करना सीखा। और सुशुद्रा ने उन्हें Shudra had taught them one more art of tying a torn air loop. That means अगर एयर छोटा सा कट जाता है तो उसे कैसे हम सी सकते हैं या कैसे हम उसे जोड़ सकते हैं। सुशुद्रा ने उन्हें वो लोटस स्टेम को, ब्रोकन लोटस स्टेम पे वर्कआउट करना सिखाया, कि उस पर ऑपरेट करना सिखाया कि कैसे कर सकते हैं। एंड ही डिमॉन्स्ट्रेटेड, दैट मीन्स कि उसने, सुशुद्रा had demonstrated in front of them कि how to clean small passages and be practical on and could be practiced on rotten wood. That means कि अगर कोई कैनल हमारी इंटेस्टाइन फूड पाइप या इंटेस्टाइन की कैनल, अगर आज तो मेडिसिन है, इनो ले लो एकदम से साफ हो जाती है, तो तब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो छोटी छोटी बिग ऑपरेशंस के साथ साथ छोटी छोटी चीजें भी सिखाई। देखो बैंडेज करना सिखाया, स्टिचिंग करनी सिखाई, और बिग ऑपरेशंस लाइक नोज की कैसे फ्लैश लगाते हैं, स्किन पे कैसे फ्लैश को हम अलग करते हैं, ये सिखाया। एंड ही टॉट देम हाउ टू टाई अ टॉर्न एयर लूप, कैसे जो एयर कट जाता है उसे कैसे सिया जा सकता है। लोटस स्टेम पे प्रैक्टिस करवाई उनकी, छोटी से लेके बड़ी चीज हर एक चीज सिखाई। और ये सिखाया कि कैसे अगर पैसेज ब्लॉक हो गई हो तो उसे कैसे क्लीन किया जाता है। वो कैसे सिखाया, एक जो वुड होती है, जो रॉटन वुड होती है, जो वुड खराब हो गई होती है, उसको कैसे क्लीन किया जाता है, उसके थ्रू दिखाया कि आप पैसेज को कैसे, इंटेस्टाइनल पैसेज हो या फूड पैसेज हो, उसे कैसे क्लीन कर सकते हैं। ओके, सुशुद्रा वाज द फर्स्ट पर्सन। सुशुद्रा एक वो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया कि आप प्लीज, आप डेड बॉडीज पे ऑपरेट करना शुरू करो। बट ऑल द टाइम ए लॉट ऑफ पीपल थॉट, बहुत सारे पीपल ये एट दैट टाइम, उस टाइम ये मानते थे कि ये अपराध है, ये गुनाह है। हिंदी उर्दू में गुनाह बोलते हैं और हिंदी में अपराध बोलते हैं। ओके, तो ये गुनाह है, ये अपराध है। most of the people were not in the sport of practicing on dead bodies, but Shushudra told them there is no other way. इससे अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, because if we want to become a professional doctor तो हम बुकिश नॉलेज हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं होगी, हमें डेड बॉडीज पे ऑपरेट करके ही सीखना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस, बहुत अच्छी लाइन है उनकी, विदाउट प्रैक्टिस ए सर्जन with only book knowledge is like a bird that cannot fly, but it has only one wing. That means कि without operations, प्रैक्टिस मीन्स विदाउट ऑपरेशन, जब तक डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो अगर उसके पास बुकिश नॉलेज है, उसने भी डिग्री ले ली है, बट इफ ही डोंट प्रैक्टिस his learning, that means that doctor is having only one wing, and a bird with a one wing cannot fly. Okay, a person who don't know how to operate, who don't know how to practice his learning or her learning, कि आप लोगों के लिए भी है, his learning or her learning, that means that person is incomplete, her knowledge is incomplete or his knowledge is incomplete. ये सुश्रुद्रा ने बच्चों को बोला था। Okay, at the ancient surgeons were also priests. जो लास्ट में आपको पहले भी कहा था कि ये जो पुराने जमाने के सर्जन्स थे उनको प्रीस्ट भी बोला जाता था, और ये पुजारी भी थे जो मंदिर की पूजा भी करते थे और बहुत सारे और बाकी भी रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते थे।
They could study the various parts of body of animal that had been used for the great sacrifices. That means कि वो शुद्रा ने कहा था कि जो sacrifices लोग करते हैं गॉड के नाम पे, तो जो प्रीस्ट हैं, जो सर्जन का भी काम करते हैं, ये उन डेड बॉडीज जब उनकी डेड बॉडी, जब उनके जो ऑर्गन्स जो नीडेड नहीं होते हैं, उनको लर्न उनको उन पे प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं बहुत कुछ. ओके. सुशुद्रा ने सिर्फ ऑपरेशन करना नहीं सिखाया, बट उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए. कौन से? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करने के लिए. और 100 इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने बनाए. एंड बट 100 इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के बाद भी ही बिलीव इन वन थिंग. ही बिलीव दैट अ सर्जन is only a complete surgeon if he has an art of handling the instruments, or if he has an art of curing the people with his two hands. That means कि अगर अगर एक डॉक्टर के पास उसके hands ही बहुत होते हैं किसी भी चीज को, किसी भी दर्द को दूर करने के लिए, बट डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होने भी जरूरी हैं जो सुशुद्रा ने बनाए. For example, the instrument which he designed for pulling out the thorns. That means जो कांटा चुभ जाता है और जो splinters हैं, small thin sharp piece of wood. तो उन्होंने क्या बनाया? Splinters and arrowhead resembles. उन्होंने जो छोटे छोटे thorns चुभ जाते हैं, क्योंकि देखो देखो बेटा, जो भी instruments were designed by the Sushruta at that time, it was designed after keeping in mind the wars that were held in the ancient time. जो वॉर्स होती थी, जो लड़ाइयाँ होती थी तलवार से, एरो से, तो उससे उन सबको जो जो डैमेजेस वो बॉडी को करती थी सोल्जर्स के या किसी के भी पीपल के, तो उन सबको माइंड में रख के ही इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बनाए गए थे. फॉर एग्जाम्पल थॉर्न्स, क्योंकि जब वो छुप के वार करते थे तो कभी कांटों में, झाड़ियों में छुपते थे, तो जो भी थॉर्न्स या इन यूजुअली जो पीपल को थॉर्न्स, क्योंकि ज्यादातर लोग फार्मर्स से फील्ड्स में काम करते थे, तो जिनको थॉर्न्स वगैरह चुप जाते थे उनको निकालने के लिए सिम्प्लिंटर्स और एरोहेड बनाए गए, जो कैसे थे? जो रिजेंबल करते थे द माउथ ऑफ वेरियस एनिमल्स. He designed saws from amputations and even surgical needles. तो जो उसके जो और उन्होंने कुछ ऐसे डिजाइन बनाए जो इन्फेक्टेड डिजीजेस लिम्स को भी निकालने के लिए काम आ सकते थे. एन इंस्ट्रूमेंट वेयर मेड ऑफ स्टील. वो जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो मैक्सिमम स्टील के बने हुए थे. और शुद्रा बोला करते थे तो इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्टर की इतनी शार्प होनी चाहिए कि वो एक हेयर को वर्टिकली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे. इतनी शार्प होनी चाहिए डॉक्टर्स की. और इसके साथ साथ द अमेजिंग मैन रोट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंडेजिंग बाउंड. उस बुक में सुश्रुता संपदा में इसके साथ साथ आप और क्या देखोगे कि उन्होंने ये भी लिखा है कि आप कैसे एक बाउंड को बैंडेज कर सकते हो. अगर किसी को लग गई हो तो बैंडेजिंग कैसे हो सकती है. ही वार्न दैट. उन्होंने वो लिखा भी है इम्पोर्टेंटली, जो अनकवर बाउंड्स होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि नेट्स एंड फ्लाइज, ये एक इंसेक्ट होता है जो जो बैक्टीरिया फैला देता है. फ्लाइज, आपको पता है फ्लाइज इज अ हार्मफुल insect that carry thousands of bacteria upon their necks and skins because they sit on the garbage and on other rotten things. तो वहां से वो जो बैक्टीरिया है, अगर वही फ्लाइज एक वॉन्ड पे किसी के जख्म पे बैठेंगी तो दे विल leave there thousands of bacteria and that wound will be very dangerous for the person. So he said that, yes, Riti. Okay. Then he said that these wounds are really very dangerous, and for this he always insists and guide doctors to bandage the wounds. तो wounds को कैसे bandage करते हैं ये भी उन्होंने बताया. और शुद्रा believe करते थे कि एक skillful doctor, Shudra believed that doctors should be use their skills for the good people and look after their patient as if they are their children. That means कि वो इसके साथ साथ डॉक्टर्स को मोटिवेशनल लेक्चर्स भी देते थे. और उस बुक में इस चीज का भी मेंशन है कि डॉक्टर सुशुद्रा अपने डॉक्टर्स को, अपने सर्जन्स को अपने बुक के थ्रू
भी आप देख सकते हो उनके कि वो हमेशा अपने डॉक्टर्स को बोलते थे कि हमेशा पेशेंट को ऐसे देखो कि जैसे वो आपके खुद के चिल्ड्रन है। ओके, जैसे वो आपके खुद के चिल्ड्रन है, हमेशा अपने पेशेंट्स को ऐसे देखो। One of the most amazing operations which Rudra taught his student to perform was replacing of nose that had been cut off. सबसे फेमस ऑपरेशन शुद्रा का हुआ था वो था कि जब उन्होंने अपने डॉक्टर्स को सिखाया, जूनियर डॉक्टर्स को सिखाया कि कैसे एक नोज को रिप्लेस किया जाता है जब वो नोज कट ऑफ हो जाता है वॉर के दौरान। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन व्हेन देयर वेयर अ वॉर। आपको मैंने पहले भी बताया कि वॉर्स बहुत ज़्यादा होती थी, तो ऐसी चीज़ें बहुत आम होती थी कि सोल्जर्स के या किंग के या जो भी लड़ रहे हैं पीपल्स के नोज तलवारों से कट जाते थे, और उसको कैसे रिप्लेस किया जाता है शुद्रा हैड टॉट his junior doctor, and that operation, that plastic surgery was one of the famous plastic surgeries given by Shushudra. Okay. Shushudra ने ऑपरेशंस बहुत डिटेल में उस बुक में बताए हुए हैं, एंड सर्जन्स को डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन एंड डाइट्स बताई हैं जो वो पेशेंट्स को दे सकते हैं। और इसी से सुशुद्रा की इस बुक से, सुशुद्रा की इस प्रैक्टिस से, सुशुद्रा की इस लर्निंग से हमारे दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी का न्यू अराइवल हुआ, एंड नाउ these days these plastic surgery are famous and each and everyone knows about it. It was perhaps the beginning of what we know called plastic surgery. ये सब प्लास्टिक सर्जरी की ही बिगनिंग थी, और then it became the world famous plastic surgery. This is all about your lesson. I hope that this lesson is clear to you. Now I am coming back to you. If you have any queries, you can ask me. Okay. Yes, Ariba. Ma'am. Ma'am, Yes, in between my meeting was disconnected. So, ma'am, I didn't understand what is amputation. amputation is the removal of an infection or disease limb by a doctor. That means कि ये वो वहाँ पे ऊपर देखो लिखा भी गया है, he designed saws for amputation and even surgical needles. amputation होता है कि जब हम, but I will give you the example. For example, जैसे एक diabetic patient है and he is having a high diabetes. Okay, तो अचानक से Yes, उन्हें लग जाती है, तो जहाँ पे वो लगी होती है तो डायबिटिक पेशेंट विल नॉट गेट रिकवर्ड सो इजली, उनकी हीलिंग नहीं होती है, ठीक है, उनकी हीलिंग yes, नहीं ma'am. होती है, तो वोंड वो वहाँ का वहाँ ही रह जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो वोंड है जहाँ पे लगी होती है वो इतना ज्यादा डेंजरस हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया हो जाता है, एंड देन द डॉक्टर्स रिमूव दैट पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर वो फिंगर में है या पाँव में है, गॉड बचाए, तो वो पाँव को ही कट कर देते हैं या फिंगर को ही कट कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन बाकी बॉडी पार्ट्स में ना फैले, तो उसे एम्पिटेशन बोला जाता है, रिमूवल ऑफ एन इन्फेक्टेड और डिजीज्ड लिम्फ बाय अ डॉक्टर। वो Okay, पार्ट thank बॉडी you, का, ma'am. फॉर एग्जाम्पल टोज हुए या फिंगर हुए, उसे कट कर दिया जाता है, एंड दैट इज नोन एज amputation. Okay, dear? Thank you, ma'am. Most welcome, most welcome. Okay. Now, Prableen, what's your question? Yes, ma'am. Yes, what's your question? Be quick. You can see through the dictionary. Don't explain me the, don't ask me the meaning of a word. Use dictionary. I have told you. Molding means shaping. किसी चीज को shape देना. Okay? Getting me? Okay. Okay, ma'am. Yes, Karuna Sharma. Yes, ma'am. Yes, what's your question? Ma'am, in the class, my class was disconnected. Ma'am, you can send the video in WhatsApp group. Yes, I will send it. Okay, ma'am. Okay. Now, yes, Shivangi, what's your question? Yes, ma'am. Yes, dear.
didn't understand one line, that is, he designed saws for amputation and even surgical needles. यस, अभी मैंने बताया ना एम्पुटेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज लिम्ड बाय अ डॉक्टर। तो उसे रिमूव करने के लिए उन्होंने साज बनाए, उसका नाम है इंस्ट्रूमेंट का, एंड सर्जिकल नीडल्स भी बनाई। ठीक है, दैट मीन्स कि जो एरिया इन्फेक्टेड हो गया है उसे रिमूव, फिंगर को रिमूव करने के लिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज की जा सकती है उस वॉन्डेड एरिया को, इन्फेक्टेड एरिया को रिमूव करने के लिए। ओके शिवांगी? Yes, Okay. ma'am. ओके बेटा, यस गुरशीन, okay, yes Gursheen, what's your question? Gurshish, what's your question? Yes Gurshish, Good afternoon, ma'am. good afternoon. Ma'am, I don't understand this line that their knives cut skillfully through the wax shapes and fruits that had been covered with wax. That means कि उनकी जो नाइफ थी वो इतनी स्किलफुली कट करती थी, कट करती थी वैक्स शेप एंड फ्रूट्स को। दैट मीन्स उस वैक्स को शेप देने के लिए वो फ्रूट्स को, दैट हैज बीन कवर्ड विद वैक्स, इन द सेंस कि अगर वो उन्होंने पहले कहा था ना कि हम पहले वैक्स को मोल्ड करेंगे वुडन बोर्ड पे और उसके बाद उसे एक शेप देंगे। तो उनकी नाइफ इतनी अच्छी थी कि उन फ्रूट्स और वैक्स को प्रॉपर्ली उस शेप में कट कर देती थी जो वो शेप चाहते थे। Here in this line you can understand only simple one thing कि यहाँ पे बताया गया है कि उनकी जो इंस्ट्रूमेंट थे वो कितने शार्प थे और कितनी अच्छी तरह से हर चीज को कट कर देते थे अकॉर्डिंग टू देयर विल। ओके, Thank you, ma'am. वेलकम। ओके नाउ yes Arushi Dogra, now what's your question? Ma'am, Hmm. ma'am, can you send the recording? Sure, I will send it. Ma'am, Yes, ma'am, can you please pronounce the doctor name? which name? Doctor name. Shushudra. Ma'am, once again, please. Beta, you can listen to me. If you have any problem, you just go to Google and write how to pronounce SUSRUTA। हर चीज आपको स्पून फीडिंग की क्यों आदत हो गई है? गूगल में जाओ, वहां पे लिखो how to pronounce SUSRUTA, you will come to know. Okay, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. welcome. Happy Navratri, ma'am.